Hello dear students, and welcome back to your own channel. Today in this video we are starting exercise 5.4, that is optional exercise of chapter number 5, that is arithmetical progression. So let us start our exercise. As this exercise is optional exercise, so questions are important. The first question of this exercise is very important because it came so many times in board examination. Okay, so this question is very important. So what is our question? Let us see. Which term of AP? So AP is given to you 121, 117, 113 and up to so on. तो दे आर आस्किंग विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो इसका कौन सा टर्म ऐसा है जो दैट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी. तो इसका मतलब कि यहाँ पर दिस इज डिक्रीजिंग, तो कहीं पर एक वैल्यू आ जाएगी मे बी -2. दिस इज द फर्स्ट टर्म. तो ये कौन सा टर्म होगा विच इज द नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी. ओके, सो let us say let nth term is the first negative term of AP. So we are asked which term. So as we are saying, let nth term is the first negative term of given AB. So nth term is the first negative term. अब जो ये भी nth term होगा, जो नेगेटिव टर्म होगा वो 0 से तो छोटा ही होगा. That means what does it mean? That means this nth term is less than 0. जो ये nth term होगा ये 0 से छोटा होगा. ठीक है, तो कभी भी हमें ये दिया होगा कि कौन सा टर्म जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो उसमें हमेशा दिस वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट a टर्म इज लेस देन 0. दिस इज ऑब्वियस. ओके, तो बस a टर्म की वैल्यू रख दो यहाँ पर. व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a टर्म? a plus n minus 1 into d is less than 0. What is a here? 121 plus n terms. We don't know which term is this. N minus 1. What is d? So d we have to find. So I am finding here what is d? 117 minus 121. That means minus 4. Okay. So let me substitute here. Minus 4 is less than 0. Find it. 121 plus minus n minus 1 into 4 is less than 0. Open it. 121 minus 4n minus plus 4 is less than 0. तो 121 plus 4 125 minus 4n is less than 0. अब 4n को मैं इधर ले जाऊंगी तो this will become plus. So 125 साइन ऐसे ही रहेगा and 4n will come this side. इसका मतलब कि 4n is greater than 125. ठीक है, इसको मैं चेंज करके भी लिख सकती हूँ. I can write it like this. 4n is greater than 125. I can write ना, देखो 4n is greater than 125, तो ऐसे लिख दिया. Same meaning is there. So therefore n is greater than 125 divided by 4. 4 3s are 12, 4 1s are 4, 1 is left, 4 2s are 8. So approximately 31.2. That means n is greater than 31.2. तो 31.2 is none of the term. ऐसा कोई टर्म होता है तो नहीं. तो n अगर 31.2 टर्म से बड़ा है तो कौन सा टर्म हो जाएगा? 32th टर्म. 31 तो होगा नहीं. 31.2 से बड़ा है तो इसका मतलब 32th टर्म होगा. तो therefore 32th term is the first negative term of this. Okay, clear this term. So let us start our second question quickly. So we can start our second question. What is the, and this question is very important. Okay, so practice this question properly, beta, all of you. So no need to leave this question. This type of questions, how many you are getting? Please do all the questions. So now let us do question number 2. So let us start question number 2. So what is question number 2? Second question. The sum of third and seventh term of AP is 6. The sum of third and seventh term of AP is 6. And their product is 8. And their product is 8. Okay, this is given to you. Find the sum of first 16 term of AP. So you have to find the sum of first 16 term of AP. Okay, this is clear. You are given that sum of third and seventh term of AP is 6.
and the product of these two term is a. चलो we have to use this only. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a plus n minus 1 into d, n की जगह 3 रखो तो a plus 2d हो जाएगा. ओके, सो a3 की जगह a plus 2d ब्रैकेट क्लोज, प्लस a7 की जगह a plus 7 minus 1 6d, a plus n minus 1 into d वाला फॉर्मूला रखा है, ठीक है, a n 7 हो गया equals to 6. So open the bracket, तो a plus a 2a plus 6 7 8d is equals to 6, और we can write 2 से डिवाइड कर दो, a plus 4d is equals to 2 3 is 6, equation number 1. ठीक है, so let me raise this first. So I can find the value of a from here. A is equals to 3 minus 4d. Let me say equation number 1 dash. Okay, so now the second what is given to us, the product of these two, a3 into a7, this is also given, ठीक है, is equals to 8. So what is a3? A plus 2d into a7, a plus 6d equals to 8. Now substitute the value of a from here because two terms are unknown. तो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है. So I am writing substituting value of a from 1 dash in equation number 2. Okay. So देखो यहाँ पर a की जगह क्या रखना है, 3 minus 4d, 3 minus 4d minus this plus 2d is same as it is. फिर अगेन यहाँ पर क्या रखना है, 3 minus 4d, और ये plus 6d ऐसे ही है equals to 8. So if I cannot write the bracket, कोई बात नहीं, ठीक है. So solve it, 3 minus plus minus minus 2d and 3 plus plus minus minus 6 minus 4 2 and plus 2d equals to 8. ये देखो this formula, this is the formula a plus b into a minus b, that means a square minus b square, because a plus b into a minus b is equals to a square minus b square. We will use this formula. a क्या है 3, तो 3 square minus 2d का whole square is equals to 8. तो 9 minus 4d square is equals to 8. 4d square को इधर ले जाओ, सो 8 को इधर ले आओ, प्लस 8 है इधर आके माइनस 8, माइनस 4d है उधर जाके प्लस 4d. ओके, स्क्वायर, सो 1 is equals to 4d square. Okay, so we have to find S16. Okay, sum of 16 terms. So let us do. We got 4d square is equals to 1. So what is the value of d square? 1 upon 4. What is the value of d? Square root of 1 upon 4. What is the value of d? That means plus minus 1 upon 2. दोनों वैल्यू आती है, ठीक है. प्लस माइनस 1 upon 2, प्लस 1 upon 2 भी हो सकता है, माइनस 1 upon 2 भी हो सकता है. ओके, सो वी गॉट वैल्यू ऑफ a is equals to this. What was the value of a? The value of a is 3 minus 4d. 3 minus 4d from equation 1 dash. ये इक्वेशन 1 dash में थी हमारी, ठीक है. दिस वॉज द वैल्यू ऑफ ए. अब यहाँ पर d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट टू वैल्यूज. ओके, व्हेन द वैल्यू, व्हेन d इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है. तो तब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 minus 4 into 1 upon 2. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2 2 4, 3 minus 2 1. तो a 1 आ गई. तो जब a 1 है तो d क्या है, प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है. अब सेम वे व्हेन d इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, तब यही इसी इक्वेशन से therefore a is equals to 3 minus 4d. So we can find the value of a from here. Okay, so find the value of a. So what will get the value of a? Let us see. A is equals to 3 minus 4 into this is minus 1 upon 2. So that means a is equals to 3 minus minus plus, and 2 2s are 4. So plus 2. So a equals to 5. तो हमारे पास जब a is equals to 5 था तो d कितना है, माइनस 1 अपॉन 2. तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है बेटा.
बिकॉज वी गॉट d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो d की अगर दो वैल्यू हो तो a की भी दो वैल्यू होंगी d माइनस 1/2 होगा तो a तो डिफरेंट होगा. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो 1 थी उसमें हमने एक बार प्लस 1/2 रखा तो हमारी a इज इक्वल टू 1 आई. फिर इसी इक्वेशन में हमने दूसरी बार माइनस 1/2 रखा तो a इज इक्वल टू 5 आया. ठीक है, तो हमें निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स. ठीक है, सो देयरफॉर सम ऑफ 16 टर्म वी विल फाइंड फ्रॉम बोथ. ओके, तो इन दोनों से निकालेंगे. ठीक है, सो देयरफॉर सम ऑफ 16 टर्म्स, दैट मीन्स S16 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब 16 टर्म S16 इज इक्वल्स टू 16/2, 2 इंटू पहले a की वैल्यू ये रख रहे हैं मान. ठीक है, प्लस n16 n माइनस 1 16 माइनस 1 15 इंटू d. जब 1 है तो ये प्लस 1/2 है. ओके, तो S16 कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 प्लस 15/2, दैट मीन्स 8. ये एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 15 19/2, 4 जा 19 4 जा 76. ओके, तो sum of 16 term is 76 when a is equals to 1 and b is equals to 1/2. Okay, so this is when a is equals to 1 and d is equals to plus 1/2. अब हम ये केस कर रहे हैं, this is the first. Second times we will get again the where sum of 16 term will be different when a is equals to 5 and d is equals to minus 1/2. तो तब sum of 16 terms क्या होगा. ठीक है, so then the sum of 16 term will be sum of 16 term equals to, again substitute the value, 16/2 2 into a 5 plus n minus 1 16 minus 1 15 into d की जगह minus 1/2. okay, so what you will get, 2 8 is 16, 10 minus 15/2, तो ये हो जाएगा 8, 10 2 is 20 minus 15/2, एलसीएम लिया है, 2 4 is 8, so 4 into 20 minus 5 20. so हमारा सम आ रहा है एक बार 20 और 76. ओके, तो therefore the sum of 16 terms can be 20 also, can be 76 also. so there are two cases possible for our sum. okay, so quickly let us start the third question. okay, so third question is, only 5 questions are there in the exercise, so let us see for the third question. Beta, you all are just doing in your rough notebook. Please take out rough notebook. Without rough notebook, please don't practice it like this. Okay, third question is, understand the question. A ladder means क्या होता है, सीढ़ी. ठीक है, has a rung 25 centimeter apart. अब now सीढ़ी बना लेते हैं. देखो, this is the ladder, ये सीढ़ी है. ठीक है, ये इसका फर्स्ट रंग हो गया. ठीक, सेकेंड रंग, थर्ड रंग, अप टू सो ऑन, और एक टॉप में रंग होगा. ठीक है, तो दिस इज अ लैडर. ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस, लेट अस राइट. अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट. तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर. ठीक है, सो अब सबके बीच की इतनी ही होगी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कम ज्यादा होगी. ओके, सो 25 सेंटीमीटर अपार्ट. द रंग डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ. तो रंग्स की लेंथ कम होती जा रही है. ठीक है, यूनिफॉर्मली मीन्स एक पैटर्न में, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर एट द बॉटम एंड 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. तो बॉटम में जो इसकी है वो 45 सेंटीमीटर है, दिस इज द लेंथ, और जो टॉप में है दिस इज 25 centimeter. okay, this is given to you. If the top and bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart. अब डिस्टेंस दी है इसके और इसके बीच की, तो टॉप और बॉटम रंग के बीच की डिस्टेंस दी है. ठीक है, दैट इज 2 whole 1/2 मीटर. देखो यहाँ पर यूनिट में डिफरेंस आ गया. ओके, मीटर अपार्ट. व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स. तो हमें
लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स करनी है, कितनी लेंथ होगी इन रंग्स की टोटल। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स है ना, this length of this plus 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 length of this, तो हमें sum of n terms निकालने हैं, मीन्स ये। तो what is the question given to you? I am repeating the question. One ladder is given to you. The distance between two rungs is 25 centimeter. इसका मतलब common difference दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो first ladder है इसका मतलब ये क्या दिया है 45 centimeter, ये a दिया है। What is the common difference in the उनके बीच की distance 25 centimeter, ठीक है। और जो लास्ट वाली रंग की डिस्टेंस दी है इसका मतलब ए एन एट टर्म है ना 25 सेंटीमीटर, इसको एल भी कह सकते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें, और इसके एडिशन में हमें दिया है कि टॉप और बॉटम की 2 होल 1/2 मीटर डिस्टेंस है। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज गिवन टू यू ऑफ टॉप या बिटवीन टॉप एंड bottom rung is equals to 2 whole 1/2 meter, 2 to the 4 1 5 5/2 meter, और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो that means 5/2 into 100. So 2 into 25, 25 5s are 2 5s are 10, 50, 5 5s are 25. तो 250 सेंटीमीटर ये हो गई यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस। तो 2 होल 1/2 मीटर, और वी कैन से 250 सेंटीमीटर इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द रंग्स। ओके, सो दिस इज गिवन टू यू। अब हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर से, जब भी हमें सम निकालना होता है तो वी वांट n। ओके, सो सम निकालने के लिए व्हाट वी वांट, देखो टोटल डिस्टेंस दी है। अब वन थिंग यू सी कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, फर्स्ट और सेकेंड के बीच की डिस्टेंस है 25, फर्स्ट और सेकेंड के बीच की डिस्टेंस है 25, ये सेकेंड वाला है, फर्स्ट वाला है। थर्ड तक की डिस्टेंस के बीच में भी फिर 25 होगी, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो 25 इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम फोर्थ करेंगे तो 25 फिर एक और बढ़ जाएगी, तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो 25 इंटू 3 करना पड़ेगा 25 को 3 बार ऐड या फिर 25 इंटू 3। ऐसे ही अगर फर्स्ट और फिफ्थ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है 25 25 25 25, तो 4 बार 25 को ऐड करना पड़ेगा, या 25 इंटू 4 करो। अब दिस इज द nth वन, ठीक है। तो फर्स्ट और nth वन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर फिफ्थ की निकालनी है तो 1 कम, फोर्थ की निकालनी है तो 1 लेस, थर्ड की निकालनी है 1 लेस, तो nth की निकालनी है तो 25 इंटू n-1 होगा। So this is the total distance. Okay, so we will write total distance between, क्योंकि इसको तो यूज करेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है, between first and nth rung is equals to, देखो 25 इंटू n-1 होगी टोटल डिस्टेंस, लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस कितनी है 250 सेंटीमीटर भी दी हुई है, ठीक है। सो दिस इज गिवन टू यू। सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, कि कितने रंग्स हैं ये, दिस वैल्यू यू विल गेट। ओके, सो 25 को यहाँ सेंड करो, n-1 इज इक्वल्स टू 250 अपॉन 25, 10 आ गया, n इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11। तो देयरफॉर there are 11 rungs, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें सम ऑफ 11 रंग्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ 11 रंग के सम निकालना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द वुड, ओके, रिक्वायर्ड। तो अब हमें पास n वी हैव टू फाइंड, चलो लेट अस फाइंड द सम ऑफ n rungs। तो sum of n rungs means, therefore sum of n means how many 11 rungs equals to, कौन सा फॉर्मूला होगा n/2। we can find write this one formula now, क्यों, because we have given the last term also, okay। तो n की जगह 11/2, a कितना है 45 प्लस l कितना है 25, okay। so 11/2 into 70 35, so it will become 385, okay। so there is 385 centimeter, okay।
तो दिस इज द सम ऑफ वुड रिक्वायर्ड, दैट मीन्स 380 सेंटीमीटर wood will be required for runs. Okay, this is clear. Practice is 2-3 times. Okay, now let us start our quickly fourth question, then the last question, fifth one. Okay, so then here this chapter will be completed, then we will move to our next chapter. So let us finish first this optional exercise. Okay, so now let us do the question number 4. Okay, what is given to you? The houses of a row are numbered consequently from 1 to 49. तो एक रो में घर हैं खूब सारे, और ठीक है, these are the houses. तो ये नंबर्ड है 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक है? 49 तक. ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सी एक चीज तो आपको ये पता चल रही है, a is equals to 1, l या फिर ये nth टर्म is equals to 49. कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 हो जा रहा है, मतलब 2 minus 1 1. ओके, तो देयर आर हाउसेज इन अ रो नंबर्ड फ्रॉम 1 to 49. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x. तो बीच में एक घर x है, ठीक है, ये x है. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग x गिवन है में सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग x, मतलब x से पहले के नंबर ऑफ हाउसेज का सम. तो x से पहले के हाउस कितने हो जाएंगे? यहाँ x माइनस 1 तक के हाउस आएंगे, तो इसका मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग x, ओके, इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट. x के बाद वाले घर का सम, ठीक है. तो x के बाद वाले घरों का सम कैसे निकलेगा? तो पहले सम ऑफ 49 निकालेंगे, टोटल सम ऑफ 49. इन टोटल में से मैं अगर x तक माइनस कर दूंगी तो इसके बाद का सम निकल जाएगा. तो इसमें से माइनस कर दिया सम ऑफ x हाउसेस. ये समझ में आया? तो इसका मतलब x के बाद वाले घर का सम. तो x के बाद वाले से स्टार्ट करेंगे, इतने का सम निकालना है. तो पहले पूरा का सम निकाल लो, ठीक है, 49 का सम. इसमें से माइनस कर दो यहाँ तक, मतलब x तक माइनस कर दो, तो सिर्फ इतने का सम निकल जाएगा. ओके, दिस इज क्लियर? Okay, so now quickly let us substitute the value in this. You will get the value of x. We have to find the value of x in here. So what is a, by using formula Sn is equals to n by 2 a plus l. ये वाला यूज करेंगे because l भी हमें दिया हुआ है, ठीक है. तो Sn, यहाँ पर n कितना है? x minus 1, n by 2 a. अब x minus 1 मीन्स यहाँ तक का निकालना है, हाँ, इतने घर का सम. सो इसका मतलब यहाँ पर n क्या हो जाएगा? x minus 1. x minus 1 n by 2 a. what is a? 1 plus l. अब l कितना हो जाएगा? x minus 1, ठीक है, is equals to s 49. 49 मीन्स ये पूरे का, ठीक है, n by 2 a plus l. a हो जाएगा 1, लास्ट 49, ठीक है, माइनस सम ऑफ x टर्म्स यहाँ तक का. सो n by 2, अब यहाँ x है ना, n by 2 a 1 प्लस l x, ठीक है. तो यहाँ पर x जो हो गया वो l लास्ट टर्म हो गया. ओके, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ओके, तो क्या करना है? x minus 1 यहाँ पर n है, तो सम ऑफ n टर्म्स n by 2 a plus l. l भी लास्ट टर्म भी n ही हो जाएगा, ठीक है. 49 का लास्ट टर्म भी यही होगा, और x तक है तो लास्ट टर्म x होगा, ओके, और n भी यही होगा. नाउ 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? x minus 1, these two cancel out into x equals to 49 plus 1 50. 50 into 49 minus x, until multiply कर दो, x वन सा x minus x square. Okay, let me multiply here also, x square minus x, ठीक है, x into x, x square minus x. तो minus x ये कैंसिल आउट हो गया.
ये माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 49, 2 को यहाँ ले जाओ, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2, 225 ज़ा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 49, तो x is equals to root of 25 into 49, that means x is equals to, इसका 5 आ गया, इसका 7 आ गया, so x is equals to 35, so the value of x house is 35, so that means our the 35th house is there which is x, ठीक है, so this is our fourth question, clear? Okay, do it properly. If it is not clear to you, revise the video and again see it. Okay, so now let us start our last question, that is question number 5, and this is our last question, so let us see, and these questions are very interesting also. Okay, by drawing the figure we can do this. Question number 5 is, a small terrace of a football ground comprises of 15 steps. फुटबॉल का ग्राउंड होता है, उसमें 15 स्टेप्स हैं बैठने के लिए ना, ऑडियंस के लिए, तो देयर आर 15 स्टेप्स, देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके करके 15 है, ठीक है, लेट दीज आर 15, ठीक है, ये 15 है मान लो, ठीक, दीज आर 15 स्टेप्स, ये बैठने के लिए स्टेप्स हैं, ये देखो, लाइक दिस दे सिट, ओके, सो दीज आर द स्टेप्स. अब now what is given to you? 15 steps. तो total number of steps are 15. तो total 15 steps हैं. Each which is 50 centimeter long. अब ये जो कितनी लंबाई है? 50 meter long. Okay. And built of solid concrete. Concrete सीमेंट का बना हुआ है, ठीक है? Each step has a rise of 1/4 मीटर. इसका मतलब जो राइज है वो 1/4 मीटर का है, ये ऊंचाई, तो यहाँ तक 1/4 मीटर है, तो इसकी 1/4 और बढ़ जाएगी, ठीक है, 1/4 यहाँ तक, ये 1/4 और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो फिर इसकी कैसे निकालेंगे, तो ये 1/4 1/4 1/4 होगी, तो इसकी 1/4 और ऐड हो जाएगी इसमें, तो हर एक के स्टेप की जो हाइट है 1/4 ऐड हो जाएगी. ओके, एंड थ्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और चौड़ाई जो है 1/2 मीटर, ठीक है, तो आई एम राइटिंग लेंथ इज 50 मीटर, ब्रेथ इज 1/2 मीटर एंड हाइट इज 1/4 मीटर ऑफ ईच स्टेप. ओके, सो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट टू बिल्ड. तो टोटल वॉल्यूम निकालना है कि इसमें कितना सीमेंट लगा है, हाउ मच कंक्रीट इज यूज्ड. ओके, तो पहले हम निकालते हैं फर्स्ट स्टेप में कितना निकला है. ओके, ऑल ऑफ यू नोस volume of concrete in first step. अब देखो ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड के फॉर्म का है. ओके, क्यूबॉइडल है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो व्हाट इज लेंथ 50, ब्रेथ 1/2, हाइट 1/4. ऐसे ही अब सेकंड स्टेप की वॉल्यूम निकालेंगे. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप, अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ ये 50 ही रहेगी, ब्रेथ 1/2 ही रहेगा, ठीक है. अब हाइट चेंज हो जाएगी, हाइट यहाँ तक थी 1/4, इसकी क्या हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2 इंटू 1/4. ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप का निकालें, ओके, सो व्हाट यू विल गेट, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब थर्ड स्टेप के लिए ये वाला लेंथ वही रही, ब्रेथ वही, हाइट 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगी. ओके, सो सेम वे हमारे पास कितने स्टेप हैं 15, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप इज इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ उतनी ही रहेगी, बस चेंज कहाँ आएगा हाइट में, तो 15 अप इंटू 1/4 हो जाएगा. सेकेंड स्टेप में 2 इंटू 1/4, थर्ड में 3 इंटू 1/4, तो 50 में ये हो जाएगा. तो एपी क्या हो गई हमारी, देयरफॉर एपी इज, देखो फर्स्ट स्टेप 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, कॉमा 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 अप टू सो ऑन. लास्ट कितना हो गया 50 इंटू 1/2 इंटू 15th स्टेप है, तो 15/4. ओके, सो now we can easily find our sum.
देखो ये वॉल्यूम इसका, तो हमें टोटल कंक्रीट कितना यूज होगा, सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम्स, तो इसका मतलब सम ऑफ दीज 15 टर्म्स निकाल लेते हैं. ओके, सो देयरफॉर आई एम जस्ट फाइंडिंग हियर, सी देयरफॉर total concrete used is equals to sum of all volumes. ठीक है, तो that means sum of 15 steps. तो n by 2 a plus l वाला फॉर्मूला लगाएं. चलो पहले राइट फॉर्मूला a plus l because we knows the volume of 15th one also. ठीक है, so therefore sum of 15 and by लेते हैं. ठीक है, by this formula. So 15 upon 2 what is a, ये है 50 into 1 upon 2 into 1 upon 4 plus l है 15 into 1 upon 2 into 15 upon 4. सॉल्व करो. 15 upon 2 कॉमन कितना आ रहा है, इन दोनों में 50 है, बाहर ले लो. 1 upon 2 भी बाहर आ जाएगा, 1 upon 4 भी बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें तो पूरा ही बाहर आ गया, तो 1 बचा प्लस 50 आउटसाइड, 1 upon 2 आउटसाइड, 1 upon 4, तो 15 is left. So let us find first, calculate this. So we will get the answer. This will become 16. 15 upon 2 into 50 into 1 upon 2 into 1 upon 4, 15 plus 1, 60. ठीक है, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 2 2s are 2 cancel out. So 15 into 50, that means 15 5s are 75, 750. This is given us in meter cube. So this much concrete is used. Okay, so that's all for our this exercise. I know this exercise is completed, plus this chapter is also completed. Please do it very properly, especially the sum of nth term 5.1 and 5.2 exercise. Please do it very properly. Okay, do it in a rough notebook. If these questions are not revised you properly, again you revise the video and do it properly. And please do like and share the video also. Thank you very much. Bye bye.